Pradesh, Shri Anil Rajbhar, Honorable Minister Uttar Pradesh, Shri Dayashankar Mishra, Honorable Minister Uttar Pradesh, Shri Ravinder Jaiswal, Honorable MLA Uttar Pradesh, Shri Tarun Kapoor, Advisor to our Honorable Prime Minister, Dr. Sanjeev Ranjan, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, Shri Sanjay Bandyopadhyay, Chairman of the Inland Waterways Authority of India, Shri Jayant Singh, Vice Chairman, Inland Waterways Authority of India, and Shri Manav Majumdar, Deputy Secretary General, FICCI. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm and hearty welcome to our esteemed dignitaries on the dais. As per our Indian tradition, we commence new and auspicious beginnings with the lighting of the ceremonial lamp. May I please request Honorable CM Shri Yogi Adityanath Ji to kindly light the ceremonial lamp, and requesting others to also join in. Thank you, Honorable Chief Minister, for lighting the ceremonial lamp. Thank you to our esteemed guests. May I request you to take your respective seats. Atithi Deva Bhava. It is also our rich tradition to honor and welcome our guests. May I please request Shri Sanjay Bandyopadhyay Ji to firstly welcome our Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Ji. Thank you. Warm welcome to Honorable Chief Minister. May I request Shri Bandyopadhyay to welcome Shri Piyush Goyal, Honorable Minister. थोड़ा सा साइड में होके करिए सर, तो हम लोग भी देख लें. I request Shri Bandyopadhyay to kindly welcome Shri Sarbananda Sonowal, Honorable Minister. I request you, sir, to kindly welcome Shri Khalid Mohammad Chaudhary, Honorable State Minister for Shipping, Government of Bangladesh. I request Shri Bandyopadhyay to welcome Shri Shripad Naik, Honorable Minister. I request Shri Bandyopadhyay to kindly welcome Shri Shantanu Thakur, Honorable Minister. Thank you, Shri Bandyopadhyay. Thank you very much. I now request Shri Jayant Singh to kindly do the honors. Sir, may I request you to welcome Shri Dayashankar Singh, Honorable Minister. Sir, may I request you to welcome Shri Anil Rajbhar. Shri Surya Pratap Shahi. To Shri Dayashankar Mishra. अरे सर थोड़ा साइड करके दिखाइए सर, दीजिए ना आराम से. To Shri Ravinder Jaiswal. सर थोड़ा साइड करिए ना, साइड दिखे ना सर. And now to welcome Shri Tarun Kapoor.
So may I please request you to welcome Dr. Sanjeev Ranjan and to Shri Manav Majumdar. Thank you, Shri Jain Singh. Ladies and gentlemen, as you know that we were supposed to have Shri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, who is to join us virtually, but due to a technical glitch, he is unable to join us. May I request Shri Jain Singh to do the honors? We have two more honorable MLAs to felicitate. Sir, if I may request you to kindly felicitate Shri Avdesh Singh, Honorable MLA. And also to kindly welcome Shri Saurabh Srivastava, Honorable MLA. Thank you. Ladies and gentlemen, an extremely warm welcome to all present here with us today. The Inland Waterways Authority of India, under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, has organized the PM Gati Shakti Multimodal Waterways Summit 2022. The summit aims to bring a greater awareness about the PM Gati Shakti National Master Plan, highlighting the perspective of infrastructural development in the waterways. FICCI, as you're aware, is the industry partner for the same. The PM Gati Shakti National Master Plan, launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, aims at providing the multimodal connectivity infrastructure to various SEZs and enhancing logistical efficiency. The comprehensive plan takes an integrated approach to implementing all existing and proposed infrastructural development initiatives in a planned and sustained manner. The summit will act as a networking platform for creating synergies between multiple key stakeholders from central government, state governments, industry and think tanks, amongst others. With these words, I would like to now request Shri Sanjay Bandyopadhyay, Chairman of the Inland Waterways Authority of India, to kindly make his welcome address. Respected Honorable Shri Yogi Adityanath Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Shri Piyush Goyal Ji, Minister for Textile, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Satyanand Sonowal Ji, Honorable Minister for Port, Shipping and Waterways and Ayush, Honorable Mr. Khalid Mahmood Chaudhary, Minister of State for Shipping, Government of Bangladesh, Honorable Shri Shripad Nayak Ji, Minister of State for Port, Shipping and Waterways and Tourism, Honorable Shri Shantanu Thakur Ji, Minister of State for Port, Shipping and Waterways, Honorable Shri Daya Shankar Mishra Ji, Minister of State Ayush, Government of UP, Minister Shri Anil Rajbhar Ji, Ravin Jaiswal Ji, Daya Shankar Singh Ji, Minister for Transport, Shri Avdesh Singh Ji, MLA, Shri Saurabh Srivastava Ji, Honorable Madam Nadullah Jaiswal Ji, Mr. Tarun Kapoor, Dr. Sanjeev Ranjan, Secretary, Ministry of Port, Shipping and Waterways, Mr. Jain Singh, and from FICCI, Mr. Manav Majumdar. This PM Gati Shakti
Waterways, Multimodal Waterways Summit has been organized to integrate the waterway on Ganga in Varanasi and Uttar Pradesh with different states with different modes. So Ganga project, World Bank funded. We plan to carry cargo and passengers from Varanasi right up to Haldia, includes 4 states. Then using the IBP route through Bangladesh to the northeast, Assam, other states of Tripura. And this is a 2-day conference. This is the inaugural session. I welcome all dignitaries, all of you, all the delegates present, media present, that in these 2 days we can sit and actually come to concrete planning and implementation schedules to do this. Earlier on the day, there was an event in which few things were inaugurated. Honorable CM and the Minister inaugurated the 7 jetties, community jetties, and laid foundation of 8 jetties. Then MOU was signed for first indigenous hydrogen fueled vessel, which will be constructed by CSL, and it will be launched in Varanasi. MOUs were also signed for giving the vessels, the electric battery powered vessel, catamarans, for Varanasi, Mathura and Ayodhya, so that we can make people aware of the greener technology and make this greener technology more popular on river Ganga. Today, MOU will be signed for the state of Assam between IWI and CSL on the electric battery powered catamarans for Assam. And Honorable Minister will also be launching the Trade Facilitation Center for inland water coastal transport. I welcome all of you again for your participation in this summit, and I hope that in these 2 days, a lot of decision and discussion will take place. Thank you very much. Thank you, Shri Bandyopadhyay ji, for your very warm welcome address. May I now invite Shri Manav Majumdar, Deputy Secretary General of FICCI, to kindly address us. Good evening and namaskar. Honorable Ministers, esteemed dignitaries, delegates, ladies and gentlemen. It's indeed an honor to be here for the PM Gati Shakti Multimodal Waterways Summit 2022. I join Sri Bandyopadhyay in extending a warm welcome to all, including the dignitaries. Ladies and gentlemen, this is an important program for a multitude of reasons and factors. In the interest of time, let me just briefly touch upon 2. First and foremost, the PM Gati Shakti National Master Plan is truly a transformative approach towards improving infrastructure, connectivity, building an efficient logistic system, and reducing our logistic costs. Next, the critical significance of multimodal waterways cannot be overemphasized. As we all know, waterways constitute a vital and cost-efficient component of multimodal connectivity. It's a means to sustain and develop a shared riverine ecology, ensure sustainable development, livelihood generation, employment creation, not only within the country, but across the region in the regional context, as articulated by and touched upon by Sri Bandyopadhyay in his opening remarks. Ladies and gentlemen, we at FICCI are honored to be associated with this prestigious event as industry partner. Our sincere thanks
to the IWAI and Ministry of Ports, Shipping and Waterways for kindly giving FICCI this opportunity. I wish the deliberations in the two-day summit a great success. Thank you for your kind attention. Namaskar. Jai Hind. कर गया ना Thank you, Shri Majumdar. I'd like to request Shri Jain Singh to kindly felicitate. We have on stage with us Srimati Mridula Jaiswal, Honorable Mayor. Ma'am, a very warm welcome to you to the summit. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm and hearty welcome to her. साइड से थोड़ा आराम से भैया Thank you. I'd like to now request Dr. Sanjeev Ranjan, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, requesting him to kindly address us. आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, Honorable Mr. Khalid Muhammad Chaudhary, Minister for Shipping from Government of Bangladesh, Shri Shripad Nayak ji, Santanu Thakur ji, our ministers in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, respected ministers from the state government, other dignitaries on the dais. It is my privilege to welcome you and thank you all for gracing this inaugural session of Multimodal Waterways Summit at Varanasi today. Over the last few years, substantial work has been done by the Ministry and the Inland Waterways to develop the waterways, and the Jalmarg Vikas program has been running for last 4 years. As a result of those efforts, today we had these inauguration of the jetties to ensure that the benefit of the work done reaches the common man all along the river. The investments that have been made in the last few years have resulted in substantial increase in cargo on the inland waterways, which has now gone up to 105 million metric tons, which was as low as 64 million metric tons just about 4 years back. Thanks to the cooperation and the support we got from the government of Bangladesh, the agreements that were there in terms of the protocol route, in terms of the coastal shipping agreement, the movement on the protocol route has also increased, and this year, last year, the volume had gone up to 5.4 million metric tons, which is again a record that has been made. In the coming days, with the Gati Shakti program and the new national logistic policy, we expect that the multimodal movement of goods increases exponentially. And with the joint efforts of all of us, the infrastructure that has been created, we can surely put it to good use to find greener modes, cheaper modes, economical modes of moving cargo and reducing the logistic cost, which is the objective of the new national logistics policy. With that end, the conclave today and the deliberations we have in the next 2 days will be our guiding principles, and with your guidance and the guidance we get from the dignitaries and the deliberation of the conference, I am sure the waterways would be able to carry a much larger volume in the years to come with the collective effort of all of us. I thank you all once again, and I look forward for a very engaging and a fruitful session. Thank you very much. Thank you, Dr. Sanjeev Ranjan, for your warm address and giving us an insight. Ladies and gentlemen, I would like to now request Shri Khalid Muhammad Chaudhary, Honorable State Minister for Shipping from the Government of Bangladesh, requesting him to kindly address us.
PM Gati Shakti Multimodal Waterway Summit 2022. Honorable Chief Minister and Honorable Ministers here, and my greetings to all esteemed guests present. At the outset, I thank the Government of India and IWAI for inviting us to the PM Gati Shakti Multimodal Waterway Summit 2022. It is my privilege and honor to be here. We are delighted and grateful that we can see eye to eye on many occasions and address bilateral matter to the best interest of the region. On this day, I remember the father of nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the then government of India. Those valiant leadership, unwavering courage inspired the people of Bangladesh to take up arms against the offshore force and clinch victory through Liberation War of 1971. I express my gratitude to the people of India for extending their bountiful hand toward the refugee of my country in 1971. I remember the 3 million Bengalis martyrs and the Indian soldier who did not flinch at the face of death and made the highest sacrifice. Distinguished guests, Bangladesh and India have stood as a friend and will continue to do so under the leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. This friendship will endure and blossom further. Bangladesh has come out the LDC status, has achieved the lower middle income country status in 2015, has robust economy even in the face of adversities. We have adopted many mega projects in the last decade, like Pabdas Bridge, Matarbari Seaport, Rupur Nuclear Power Plant, Padmabari Rail Link, Metro Rail, Paira Seaport, Kornofuli Tunnel, Bangabandhu Railway Bridge Project, Hazrat Shahjalan International Airport, Third Terminal 3, and many others. From all these projects, not only Bangladesh stand to reap benefit, but the entire South Asian region will be benefited. Ladies and gentlemen, I used to be connect with our neighbors, especially India, in very possible way. Our connectivity through land, water, air would be strengthened by transport project. Not to mention the new opened multiple bridges. We have adopted BRCPI, Bangladesh Regional Connectivity Project 1, so that we can achieve a seamless connectivity in the sub-region. To that end, we have started transshipment, transit, inter-country trade of all type of goods and cargoes under the protocol on inland waterway transit and trade. Bangladesh-India trade through waterways was started in 1972. Now we have 10 routes through which bilateral trade is rising to look forward to further exploit our
riverine route to increase to trade volume in future. We have railway track all over the country, and India Railway has the longest railway track in the world. So we seek to reap the benefit from all of our resource and make the very efficient and sustainable connectivity. Respected guests, I am confined that every time we meet as a summit such this, we are going to find new horizon to develop our relationship and strengthen our ties. I again thank the Government of India and those who have worked relentlessly to make this event a success. Long live India-Bangladesh friendship. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Thank you, Shri Khalid Mohammed Chaudhry, for your kind address. We look forward to further fruitful ties between both the countries. Ladies and gentlemen, we will now play a short film on the PM Gati Shakti. Can we have the film, please? देश की प्रगति को गति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है 21वीं सदी के भारत के लिए मल्टी मोडल और आधुनिक कनेक्टिविटी का निर्माण। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इस कड़ी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और अमृत काल में देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉलिसी लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन में कारगर साबित होगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, उपभोक्ताओं को सही दाम पर सामान मिलेगा व किसानों और एमएसएमईज को अपने प्रोडक्ट्स का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस पॉलिसी को अमल में लाकर देश वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाएगा और उसे ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर करेगा और भारत दुनिया के टॉप 25 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। इसके लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक वेयरहाउसिंग, डिजिटल प्रक्रिया और रेगुलेशन, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट और टाइमलीनेस जैसे कंपोनेंट्स पर विशेष फोकस है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी आदि के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स प्लान बनाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया को लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं से जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यूनिट तैयार किया गया है ताकि लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स को आसानी हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने में भारत सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अहम भूमिका है। राज्यों के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के आकलन के लिए हर साल लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स सर्वे कराया जाता है। इससे राज्यों में लॉजिस्टिक्स फोकस के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को प्रगाढ़ करते हुए भारत सरकार राज्यों में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए विशेष सहायता और सहयोग के लिए समर्पित है। देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक ई हैंडबुक भी तैयार की गई है ताकि स्टेक होल्डर्स इसका उपयोग करें और देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप वेयरहाउसिंग सेक्टर का विकास हो।
साथ ही लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस के मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पोर्टल ई-लॉग्स बनाया गया है। इसके द्वारा इंटर मिनिस्ट्री सर्विसेज इंप्रूवमेंट ग्रुप मुद्दों का तेजी से हल निकालेगा और कारोबार को लाभ मिलेगा। कोविड महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में स्किल्ड मैन पावर की कमी के कारण सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा था। इसलिए भारत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के तहत लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन से जुड़े कई कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स आधारित स्किल निर्माण पर भी फोकस है, ताकि हमारी युवा शक्ति के लिए देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने। एक सशक्त, एकीकृत और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी और भारत विश्व पटल पर लीडिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। PM Gati Shakti, a new road for further economic development for the country. Ladies and gentlemen, we now have the launch of the website IWAI Trade Facilitation Center for Inland Water and Coastal Transport. It's an online portal for the users of waterways and coastal shipping to access relevant operational and commercial information regarding waterways. May I please request Shri Sarbananda Sonowal, Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways in Ayush Government of India, to kindly launch the website, requesting Honorable Chief Minister to do the honors. Thank you. Ladies and gentlemen, we now have the MOU signing, and may I please invite Shri Ashutosh Gautam, Member Technical IWAI, and Shri Madhur Nair, Chairman and Managing Director of the Cochin Shipyard Limited, to on the dais to kindly exchange the MOU between IWAI and Cochin Shipyard Limited for electric battery powered by hybrid catamarans for Assam. In the gracious presence of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji. Thank you. Ladies and gentlemen, I would like to now invite Shri Sarbananda Sonowal, Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways in Ayush Government of India, to kindly address us. नमस्कार। आज की पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार की वायुस मंत्री परम श्रद्धेय पीयूष गोयल जी, बांग्लादेश सरकार की मंत्री माननीय खालिद महमूद चौधरी जी और हमारे मंच पे उपस्थित भारत सरकार की माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर और आज इस सभा कक्ष में उपस्थित अलग अलग भारत सरकार की कॉरपोरेट सेक्टर की प्रतिनिधिगण, प्राइवेट सेक्टर की प्रतिनिधिगण और
हमारे प्रिय पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले मैं भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से काशी में 2 दिन का जो वाटरवेज समिट आयोजन किया गया है, इस बैठक में आप लोगों ने उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाने में जो कदम आपने उठाई है, इसके लिए मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप सबको मालूम है, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से आज भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय भारत को यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कदम उठाते आए हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और साथ साथ में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए आज देशवासियों को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया है और देशवासियों का मन में आज विशेष रूप से उम्मीद जाग उठा है कि ये देश निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भर देश बनेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए जब तक हमारा यातायात व्यवस्था आधुनिक नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बना सकते। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 सदी में दुनिया के साथ अलग अलग देशों का साथ हेल्थी कंपटीशन में भारत को शामिल करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो दिशा उन्होंने दी है, इससे सभी भारतीयों का मन में सपना जाग उठा है, उम्मीद जाग उठा है और सबका यह मानना है निश्चित रूप से इसी व्यवस्थाओं को द्वारा हम अपने हर व्यक्तियों का शक्ति बढ़ाने में हम सफल रहेंगे और इस देश को सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने में हम सब सफल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज 2 दिन का जो बैठक है, इस बैठक में अलग अलग सेशन रखा गया है और आज हमारे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुबह का जो कार्यक्रम उन्होंने जो हमें सहयोग की, इसके लिए सुबह का कार्यक्रम सफल रहे और आज ये कार्यक्रम विशेष रूप से जो टेक्निकल सेशन शुरू होंगे, इस टेक्निकल सेशन में आज हमारे बीच हमने आमंत्रण की है पीयूष गोयल साहब को, क्योंकि हमारे भारत सरकार की वरिष्ठ मंत्री भी है, अनुभवी है और हमारे राज्यसभा के नेता भी है। तो उन्होंने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी दोनों कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पीयूष गोयल साहब ने बहुत मेहनत की है और इसके वजह से आज देश का हर प्रांत इस पॉलिसी का साथ जोड़ रहे हैं और मेरा ये मानना है कि अलग अलग मंत्रालय को जो दायित्वभार दी गई है, हर मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं और उसी दिशा पर हम लोगों ने भी वाटरवेज की तरफ से भी ये 2 दिन का जो हमने बैठक बुलाया है, इस सेशन में वाटरवेज समिट कैसे हमारे जलमार्ग विकास हम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग विकास के जरिए जनता की
जो क्षमता, जनता की शक्ति दुगुना बढ़ाने के लिए और उनके उपार्जन और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो हमें दिशा दी है, जो विजन दी है, उसी विजन को साकार करने में हमारा भी मंत्रालय लगे हुए है। और इसलिए नेशनल वाटरवेज 1 गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही देश के अंदर कुल मिला के 111 नेशनल वाटरवेज है। इनमें से आज टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का बाद 23 नेशनल वाटरवेज को हम लोगों ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगे हुए हैं। और अगले दिनों में हमारा यही लक्ष्य है कि हमारा जलमार्ग के जरिए जनता को अपने अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिले। इसलिए गंगा की दोनों पार हमारे 8 गंगा यानी कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 के मुताबिक हम लोगों ने 60 नंबर्स ऑफ जेटी हम लोगों ने निर्माण की है। और 60 नंबर्स ऑफ जेटी के जरिए हमारे नदी का दोनों पार में बसे हुए जनता को अपने सामान इधर से उधर, मतलब मार्केटिंग के सिलसिले में और सामाजिक हमारे रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए, कल्चरल हमारे एक्टिविटी के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए, यानी कि हर चीजों पर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाया गया है, इस फैसिलिटी के द्वारा जनता का लाभ होगा। उसी हिसाब से नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र की दोनों पार में अलग अलग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ जेटी भी बनाया गया है। तो देश भर में इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम मजबूत बनाएं, इसलिए हमें जो विजन दी गए हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, इसके मुताबिक हमारी कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी जलमार्ग के जरिए हम अधिक मजबूत करें, यह लक्ष्य हमारा पास है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल के अंदर जलमार्ग विकास के सिलसिले में जो विशेष ध्यान दिया है, विशेष मदद की है, इसके वजह से आज हमारे शक्ति बढ़ चुका है। आप लोगों को मालूम होगा 2013-14 तक हमारा कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी यानी कि कैपेसिटी हमारे 20 शिप 16 तक थे, 16 मिलियन मैट्रिक टन, और आज ये बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कदम के वजह से आज ये बढ़कर 109 मिलियन मैट्रिक टन हो गए। यानी कि ग्रोथ आप हिसाब कर लीजिए, फ्रॉम 16 टू 109 मिलियन टन, 9 मिलियन metric ton. This is the growth in the last 8 years because of Honorable Prime Minister untiring efforts, vision and leadership. On the same line, in port sector also, our cargo handling capacity went up to 1,600 million metric ton per annum. It was only 800 million metric ton up to 2014. That is the difference of leadership. That is the power of Modi's regime, and this is the power of his personality, power of his vision. And I believe this is the way we'll have to proceed. And if we all could able to develop this better connectivity, I am confident that this nation is going to be the most powerful nation in the world. And as per the Modi's vision, every Indian will have the opportunity to prove their ability that India is the best, India is the best, India is the best. With these few words, I give special thanks योगी आदित्यनाथ जी, आपने बहुत हमें मदद की है और आपकी मदद के वजह से आज उत्तर प्रदेश काशी में 2 दिन का हमने वाटरवेज समिट आयोजन करने के लिए हमें मौका मिले हैं। और साथ साथ में पीयूष गोयल साहब आपने आकर हमें हौसला दी है, हिम्मत दी है, और अगले दिनों में हमारा काम एक साथ है, क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के सिलसिले में भी हमारा पोर्ट का दायित्व है और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी हमारा प्रमुख भूमिका है। तो इसलिए बीइंग द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंट्री, वी हैव टू ऑलवेज कनेक्ट विद द अदर्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड आई बिलीव this is the way we'll have to proceed, and we will have to fulfill the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And I'm also specially thanks to the
like Honorable Minister from Bangladesh, Khalid Mahmoud Chowdhury ji. You have come all the way to encourage us, and also you have expressed your willingness to work together with India and Bangladesh for our waterways connectivities. With these few words, I again thanks all of you. Please continue to cooperate. Thank you. Jai Hind. Thank you, Honorable Minister, for your kind and notable address. Ladies and gentlemen, I'd like to now invite Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister for Textiles, Minister of Commerce, Industry and Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to kindly address us. हम सबके नेता उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्तृत्ववान लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे भाई मित्र, और जो इतने पैशन के साथ पोर्ट शिपिंग सेक्टर हो, आयुष सेक्टर हो, हर विषय को बहुत ही गहराई में जाके तेज गति से विकास इन क्षेत्रों का कर रहे हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी बांग्लादेश से खास इस कार्यक्रम के लिए और भारत और बांग्लादेश के बीच जो अटल संबंध है उनको और मजबूत करने के लिए आए मंत्री श्री खालिद मोहम्मद चौधरी जी, मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, विधायक, महापौर बनारस की, अन्य अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभाव, मीडिया के मित्रों, भाई और बहनों, 8 साढ़े 8 साल हो गए इस सरकार को। 8 साढ़े 8 साल में जिस प्रकार की चुनौतियों को सरकार ने समय समय पे देखा, समय समय पे जूझा, उसको हम सब ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। गत 2-2.5 वर्ष तो खासतौर पे कोविड महामारी और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बिगड़ी हैं, इन सबको हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन चुनौतियों को कैसे अवसर में बदलना और कैसे देश की जो फाउंडेशन है, नींव है, उसको मजबूत करना, ये 2 विशेष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम के पहलू थोड़ा बहुत मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कार्यक्रम हाथ में लिए। कोई सोचे तो 15 अगस्त को स्वच्छ भारत की बात करना शायद प्रधानमंत्री के लेवल का काम नहीं है, लेकिन हम सब समझते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ना है, देश में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, देश की छवि अच्छी बनानी है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो एक स्वच्छ भारत तो अनिवार्य है। सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी माता बहनें बहुओं के साथ, बेटियों के साथ कितनी हीन भावना होती होगी कि आधे से अधिक घरों में आजादी को 67 साल के बाद भी हम शौचालय नहीं दे पाए थे। करोड़ों घर ऐसे थे जिनके पास पक्का मकान नहीं था, करोड़ों घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी शहरों के बाहर जर्जर व्यवस्था में थी। अन्य ऐसे क्षेत्र
जो कोई भी विकसित देश के लिए एक फाउंडेशनल रोल प्ले करते हैं, ऐसे क्षेत्रों पे पैरेलली साइमल्टेनियसली प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष बल दिया। उनके ध्यान में है कि अगर कोई देश को विकास करना है, जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ सड़कें बन जाए या रेलवे लग जाए ऐसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे देश में नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड बने, वन नेशन वन ग्रिड हो, जिससे 24 घंटे देश के कोने कोने तक बिजली उपलब्ध हो सके। देश में इनलैंड वाटरवेज की गाथा तो अभी अभी सोनोवाल जी ने बताई, कल्पना के बाहर वृद्धि हुई है। एयरपोर्ट्स लगभग 2 गुने हो गए, पोर्ट्स की क्षमता दुगनी हो गई, रेलवेज की जो स्पीड है, फ्रेट ट्रेन आप सबको याद होगा 2014 के पहले 22-23 किलोमीटर प्रति घंटा माल ढोती थी। सोनोवाल जी गुवाहाटी से आते हैं, मुंबई से गुवाहाटी 8 दिन लगते थे रेलगाड़ी को, मालगाड़ी को पहुंचने में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक विषय को लगभग स्वयं मार्गदर्शन देके, कंटिन्यूअस गाइडेंस, और साथ ही साथ एक निगरानी रख के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है मॉनिटरिंग और एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के। जब तक आप मॉनिटर नहीं करो कोई प्रोजेक्ट, और जब तक लोगों को जवाबदेही नहीं बनाओ आउटकम्स के लिए, तब तक काम पूरा नहीं होता। और ये गत 8 वर्षों में जो अन्य चीजें, आप कल्पना करिए, क्या कोविड से आप जूझ सकते थे? देश जूझ सकता था अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी से हर घर तक इंटरनेट नहीं पहुंचा था, बिजली नहीं पहुंची थी, शौचालय नहीं पहुंचे थे, 3 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का घर नहीं मिला होता, कैसे हम कोविड का सामना करें? देश को लेकिन जिस प्रकार से एक रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाई गई है, ये एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को हम एक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर हमें देश को विकसित देश बनाना है, एक समृद्ध देश बनाना है, तो अगले 25 वर्षों तक इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करना पड़ेगा, इस देश को जो मजबूत अर्थव्यवस्था बनानी है, उसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक प्रकार से संजीवनी का रूप लेके प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया। इसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के आज से 20 साल पहले उन्होंने कल्पना करनी शुरू की थी। मेरा आज मानना है कि विश्व में पीएम गति शक्ति जैसा कोई टूल कोई देश के पास नहीं। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड डोंट हैव एनीथिंग लाइक पीएम गति शक्ति। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे केंद्र सरकार काम करती है, कैसे राज्य सरकार काम करती है, कैसे सरकारों के अंदर भी डिपार्टमेंट साइलोज में काम करते हैं, कोई एकजुट होकर एक साथ विचार सम्मिलित करके इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्लानिंग की कोई कभी आज तक हमने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि उसकी क्या महत्व है। प्रधानमंत्री जी 2001-2 से ही सोचने लगे थे कि कैसे भारत में हम सबको जोड़ के एक अच्छा भविष्य दे सके, अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लानिंग कर सके। कई बार वो विदेश वगैरह में जाते रहते थे,
देखते थे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ने उन देशों को विकसित बनाया। तो हम सबने सुना हुआ है जॉन एफ कैनेडी का वो बहुत फेमस वाक्य, डिड अमेरिका मेक द हाईवेज और हाईवेज मेड अमेरिका ग्रेट। और मैं समझता हूं हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग इसका जवाब सही माने में भली भांति जानते हैं कि जब तक देश में आधारभूत सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी तब तक कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है, कोई देश समृद्ध या विकसित नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री जी ने आज से 17 साल पहले बाइजैक का निर्माण किया, जिसके डायरेक्टर श्री टीपी सिंह साहब यहाँ सामने बैठे हैं और मुझे लगता है आपको सौभाग्य मिलेगा उनको सुनने का। अगर शायद प्रधानमंत्री जी के बाद कोई उनका सबसे बड़ा फैन है तो वो मैं हूं। बाइजैक ये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड जियोस्पेशियल एप्लीकेशंस गांधीनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2005-06 में शुरू की थी। तब से ये जिज्ञासा उनके मन में थी कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत बनाना। और भाइयों बहनों, महाराज जी आपकी आज्ञा से मैं थोड़ा समय ले रहा हूं क्योंकि लोगों को समझ में आए कि ये क्या विषय है, पीएम गति शक्ति यानी क्या। और बाइजैक ने तभी से इस देश को एक अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लानिंग का टूल बनाने का काम शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई लोगों को, कई एक्सपर्ट्स, कई टेक्नोलॉजी बेस्ड लोगों को इसमें जोड़ा, कई सेक्रेटरीज को जोड़ा, मंत्रियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया। लेकिन ये उनका जो विजन था वो कैप्चर करना सरल नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता होती है आप सबके साथ शेयर करते हुए कि गत वर्ष दुर्गाष्टमी के दिन जब पीएम गति शक्ति को देश के समक्ष लॉन्च किया गया, दुर्गाष्टमी उपयुक्त दिन था, दुर्गा शक्ति का भी प्रतीक है और गति का भी प्रतीक है। और दुर्गा माँ के आशीर्वाद से जो 1 वर्ष की जर्नी रही है ये वास्तव में अद्भुत रही है। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि देश का हर राज्य इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, हर यूनियन टेरिटरी, आज तो लोकल बॉडीज भी पीएम गति शक्ति के साथ जुड़ना चाहिए। और ये स्थिति बन गई है कि लगभग 1500 मैप्स या लेयर्स ऑफ डेटा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत तैयार हो चुके हैं केंद्र के द्वारा, और राज्यों की जो डेटा इसमें इंटीग्रेट हुई है वो जोड़े शायद 700 के करीब और लेयर्स ऑफ डेटा। अब ये मैप्स या लेयर्स ऑफ डेटा क्या है? ये बताती है कि देश में आज के दिन क्या सुविधाएं उपलब्ध है। एक मैप है जो देश की सब रेलवे लाइनें बताती है, एक मैप है जो देश के सब नेशनल हाईवेज बताएगी, एक मैप बताएगी देश के सब स्टेट हाईवेज, एक मैप बताएगा जितने रिवर्स हैं इस देश के, एक मैप पूरे फॉरेस्ट एरियाज को कैप्चर करेगा, एक मैप वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को कैप्चर करेगा। अब तो ये ऐसा बढ़ते जा रहा है कि हमने एक लैबोरेटरीज, टेस्टिंग लैबोरेटरीज देश में कितनी है उसका भी मैप बना दिया। देश में स्कूल कितने हैं उसका काम चल रहा है मैप बनने का। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर टूल के बहुत आगे जा रहा है। और मीडिया के मित्र इसको गलत ना समझे जो मैं वाक्य कहने जा रहा हूं। ऑल दीज मैप्स, ऑल दीज लेयर्स टॉक टू ईच अदर। अब ऐसा ना हो जाए कि कोई बेसमझ लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाए कि मैप्स कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। These maps all are connected through APIs
जिससे ये सब एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग का टूल बन जाते हैं। ये मैप सब ऐसे इंटरकनेक्ट हो गए और मेरा टॉक टू ईच अदर का मापदंड कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब इंटरकनेक्ट हो गए। और अब जब हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया ही बन गए, विकास के प्रतीक के रूप में मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। जिस तेजी से एक के बाद एक यहाँ फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, अपने आप में एक मिसाल है। और जिस स्पीड से काम हो रहा है, ये भी शायद उत्तर प्रदेश छोड़ो, मुझे लगता है भारत ने कभी नहीं देखा होगा। अब ये सब प्लानिंग जब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के इन लेयर्स ऑफ डेटा, 2200 लेयर्स ऑफ डेटा के थ्रू हम प्लानिंग करेंगे, तो अगर कोई समझो एक्सप्रेसवे का प्लान बन रहा है, आज कैसे बनता है एक्सप्रेसवे का प्लान या रेलवे की नई लाइन, दफ्तर में बैठ के मैप बनता है, मैप के ऊपर लाइनें बनती है, फिर मौके पे जाके सर्वे होता है, सर्वे के हिसाब से अलाइनमेंट होती है, उसमें ग्रेडियंट वगैरह देखना पड़ता है। रेलवे में एक पर्टिकुलर टर्निंग कर्वेचर हो सकता है, रोड में अलग होता है, हाईवे का अलग है, एक्सप्रेसवे का अलग है, पुल का अलग है, फ्लाईओवर का अलग है, दुनिया भर के अलग अलग इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इस सबको भी पीएम गति शक्ति में फीड इन कर दिया गया। तो जब कोई अलाइनमेंट, जब कोई प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लान आज दफ्तर में और फिर 2 साल का सर्वे, सर्वे के बाद लैंड मैपिंग करो कि भाई किसका लैंड हमें एक्वायर करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सैंक्शन करो, शुरू कर दो, आधे रास्ते जाके कोई एक छोटा सा पैच कोई रिजर्व फॉरेस्ट का निकल आए या किधर कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को टच कर रही हो या कोई और हाईवे निकल रहा हो जिसका पुल तो हमने प्लान किया ही नहीं, या कोई नदी चल रही हो और उस हिस्से में जाके ये रेलवे लाइन या आपका हाईवे गया जहां 1 किलोमीटर का ब्रिज लगेगा, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स भी डिले होते हैं, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट ओवररन हो जाता है और टैक्स पेयर का, देश का अमूल्य पैसा बर्बाद नहीं होता है। एक प्रकार से लोगों के काम भी नहीं आ सकता और कई बार तो दशकों तक कुछ प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं। आज जब इन प्रोजेक्ट्स को पीएम गति शक्ति के माध्यम से निकालते हैं तो जो काम 2 साल में होता था वो आज सिंह साहब 1 हफ्ते में हो जाता होगा। अगर योगी जी ज्यादा प्रेशर डाले तो 2 दिन में भी हो सकते, क्योंकि ये सब रेडी डेटा है। जब अलाइनमेंट को पीएम गति शक्ति में डालेंगे तो बता देगा कि कोई फॉरेस्ट टच कर रहा है, भाई इसको थोड़ा फेर दो, अलग रास्ते से निकाल लो। अगर कोई सैंक्चुरी आ रही है, आपके वहां दुधवा नेशनल पार्क है ना, अगर वो बीच में पड़ रही है तो समझ दो प्रोजेक्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन पीएम गति शक्ति पहले से वार्निंग दे देगा, भैया इसका अलाइनमेंट थोड़ा 3 किलोमीटर उस तरफ ले जाओ, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से बच जाओ। कोई नदी आई, कोई नदी एक जगह 1 किलोमीटर का ब्रिज लगेगा, शायद 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, कोई पतला हो जाए, 200 मीटर के ब्रिज से काम चल जाए। आपके और मेरे टैक्स दिया हुआ शायद 500,000 करोड़ रुपए बच जाए, काम भी जल्दी हो जाए और जमीन के रिकॉर्ड्स उसमें इंटीग्रेट करने से जैसे प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट फाइनलाइज होती है तो सीधा किस किस की जमीन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगी,
गुजरात में तो यहां तक ले गए कि उसका नोटिस भी पीएम गति शक्ति के थ्रू निकल जाते हैं, लैंड एक्विजिशन का नोटिस, कि भाई अलाइनमेंट तय हुई, वही मैप रीड करता है कि कौन सी जमीन चाहिए और वो नोटिस भी निकाल देता है कंप्यूटर से हाथ के हाथ। इतना इंटीग्रेटेड प्लानिंग टूल मुझे लगता है दुनिया में मैंने तो आज तक कभी किधर सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। और इतना एफिशिएंटली काम करने वाला टूल तो शायद किसी को बनाने में और 50 साल लगे। और भाइयों बहनों, ये सिर्फ प्लानिंग नहीं करते, फिर उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं और आपको बताते रहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में एक रेलवे लाइन आज से 45 साल पहले शुरू हुई थी और आज तक खत्म नहीं हुई है, वो स्थिति इस देश को कभी नहीं देखनी पड़ी। वो बताता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो पहले 6-7 साल तक कुछ काम ही नहीं हो रहा था, उसको जो 2014 के बाद गति मिली है, ये अब हर प्रोजेक्ट को वैसी ही गति देने का काम पीएम गति शक्ति के माध्यम से किया जा सकता। और उसी के साथ साथ जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, अति आधुनिक पॉलिसी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए एडिशनल फंडिंग भी देती है इसकी, जो बताती है कि भाई जेएनपीटी में पोर्ट बना, मैं महाराष्ट्र से आता, वहां देश का सबसे बड़ा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सोनोवाल जी के नीचे आता है। आप यकीन नहीं करोगे, इतना बड़ा इतना विशाल पोर्ट बन गया। रेलवे लाइन वहां से शायद 20-25 किलोमीटर दूर जाती थी, हाईवे भी 20 किलोमीटर दूर थी। जो आखिरी के 20 किलोमीटर थे वो दशकों तक कनेक्ट नहीं हुए, दशकों तक। अब पीएम गति शक्ति आपको आज ही बता देता है कि योगी जी आप जेवर में एयरपोर्ट बना रहे हो, आपका एक्सप्रेसवे वहां से 18 किलोमीटर या 22 किलोमीटर जो भी है, मुझे जानकारी नहीं है, दूर है। एयरपोर्ट के साथ साथ आप इस 22 किलोमीटर को भी जोड़ दीजिए। जिस दिन एयरपोर्ट खड़ा होगा, आपकी ट्रेन भी वहां तक आएगी, आपका एक्सप्रेसवे भी वहां तक आएगा, व्यक्ति प्लेन से उतरेगा या ट्रेन से या गाड़ी से वहां से निकलेगा और पूरा एंड टू एंड देश में कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। ये है पीएम गति शक्ति का हेतु। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के माध्यम से देश में जो आज एक कई बार प्रतिक्रिया होती है कि 13-14% लॉजिस्टिक्स का खर्चा है, इसको हमें अंतरराष्ट्रीय मापदंड पे लाना है, यानी 8-9% पे लाना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खर्च रही हैं, उससे हम इस कॉस्ट को भी कम कर पाएंगे। और इनलैंड वाटरवेज का इसमें एक जो नया रूप, नए स्वरूप में जो मोदी जी ने जोड़ा है, जो विशाल तरीके से प्लानिंग हो रही है, वो तो इस खर्चे को बड़े पैमाने पे कम भी करेगा और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि पर मेट्रिक टन ऑफ फ्रेट मूव पर किलोमीटर, पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर बाय सी एंड बाय इनलैंड वाटरवेज will be far less than any other mode of transport. तो मैं समझता हूं एक साथ इतने सारे लाभ देने वाली जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, जो विजन था, उनके अथक प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी निगरानी में और टीपी सिंह साहब और इनकी पूरी टीम के प्रयासों से आज देश को समर्पित हुआ है। एक वर्ष में उसने बहुत बढ़िया काम किया। आगे और तेज गति से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में उसका बड़ा योगदान रहेगा। आप सब जो इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि जरूर कोशिश करें कि अहमदाबाद स्थित वाइजैग एक बार विजिट करें, देखें, समझें
शायद जीपी सिंह साहब भी कल कुछ लाइव एग्जाम्पल के साथ अगर लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे तो आपको भी मजा आएगा देखने का, आपको भी लालच होगा कि आप भी इस्तेमाल करें इसको। और आगे चल के जो 5 प्रण लेके आजादी का अमृत महोत्सव हमने बनाया है, प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबको 5 प्रण दिए हैं, इस देश को अगले 25 साल के अमृत काल में एक विकसित देश बनाने का जो इस हम सबका सपना है, जिसको क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री जी दिन रात प्रयत्न में लगे हैं, काम में लगे हैं, उन सबको पूर्ण करने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, यूनाइटेड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये सभी मिलके आपका भी काम सरल करेंगे, देश और देशवासियों की जरूरतों को पूरा करेंगे। और मैं मानता हूं जो उत्तर प्रदेश का सपना है और हर उत्तर प्रदेश के नागरिक का सपना है कि एक एक व्यक्ति के घर में समृद्धि पहुंचे। जो पहला लक्ष्य योगी जी ने रखा है, इसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, और जब भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 में बनेगा, तब उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 इकोनॉमी बने। उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब साथ में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनोवाल जी, आपने मुझे मौका दिया। योगी जी, आपने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 चांद लगाए, जो गति दी है, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश आपका आभारी है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, for your kind address and sharing the vastness of the PM Gati Shakti and its immense role in India's massive growth story. Ladies and gentlemen, we are extremely grateful for the kind presence of our dynamic Chief Minister of Uttar Pradesh, who has brought progress and upliftment to the state of UP. It is now my honor to invite Shri Yogi Adityanath ji, and may I request him to kindly address us. पीएम गति शक्ति मल्टीमोडल इनलैंड वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 के आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के पत्तन, जल परिवहन एवं आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, बांग्लादेश सरकार के माननीय मंत्री श्री खालिद महमूद चौधरी जी, मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय श्री श्रीपद नायक जी, श्री शांतनु ठाकुर जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के भी सभी अधिकारीगण, इस आयोजन में सहयोग कर रहे फिक्की के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारत सरकार के पथ परिवहन मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल इनलैंड वाटरवे के इस कॉन्क्लेव का आयोजन दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी भगवान भोलेनाथ की इस पावन नगरी काशी में किया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि काशी से
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के सांसद के रूप में देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8.5 वर्षों के दौरान वाराणसी ने, उत्तर प्रदेश ने और देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं वह सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की ही जब मैं बात करता हूं या देश की ही हम बात करते हैं, अक्सर आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज बना था आज से लगभग 30 वर्ष पहले सरयू नदी में। उस पे हर वर्ष रिपेयरिंग का कार्य करना पड़ता है। ऐसे आप पटना में जाएंगे आपको यही देखने को मिलेगा, उसका एक लेन तो हमेशा रिपेयर में रहता है। एक ये दिखाता कि प्लानिंग का अभाव, अगर उस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोई पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म मौजूद होता तो संभवतः ब्रिज का निर्माण कहां पे होना है और उसके कारण कार्य की क्वालिटी के साथ साथ कार्य की समयबद्धता को, टाइम बाउंड कार्य हो सके, उन सभी की दृष्टि से आज ये प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत यद्यपि यह 1 वर्ष पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक नया स्थान प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में अगर हम सड़क परिवहन की दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मदद से लगभग 12 से 13 एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की, वे नेपाल से हों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सबको 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम लोगों ने इस कनेक्टिविटी को दिया है। रोड कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर यह उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और इसका जो जंक्शन है वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही बोड़ाकी नामक स्थान पर आता है, जो हमारे लिए लॉजिस्टिक हब का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। मैं भी 1 सप्ताह पहले बलिया में था। उत्तर प्रदेश का एकदम उत्तर पूर्व कोना पड़ता है, तो मैं वहां उस जनपद में था। एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर से मुझे इस बात के लिए अनुरोध किया गया था कि मैं एक फ्लैग ऑफ करूं, वहां से कुछ सब्जियां यहां से एक्सपोर्ट होनी है। तो मैं वहां गया था कार्यक्रम में, मैंने फ्लैग ऑफ किया, मैंने देखा सब्जियां बहुत ताजी थी, अच्छी थी। मैंने कहा कैसे करेंगे, कैसे लेके जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, यहां से जाएगा, यहां से कार्गो से वाराणसी से ये दुबई जाएगा। आप अनुमान कर सकते हैं कि बलिया से, देवरिया से, कुशीनगर से, गाजीपुर से, जौनपुर से, चंदौली से, इन जनपदों से जब कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट होने लग जाए तो यह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाता तो है ही, साथ साथ उसके मन में एक विश्वास भी जागृत करता है।
उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और हम लोग खासतौर पर इस बात को लेकर के हमेशा, क्योंकि जब भी हम अपने किसानों को इस बारे में कहते थे कि आप अपने उत्पाद को यहां से अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्रोडक्ट दीजिए, उसको यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो पिटता था वहां पर जब उसकी कॉस्ट ज्यादा आती थी। तो हमसे मांग होती थी एक्सपोर्ट सब्सिडी हमें दीजिए, या तो हम एक्सपोर्ट सब्सिडी देकर के पोर्ट तक पहुंचाने का उसका खर्चा स्वयं सरकार वहन करे, और अन्यथा हम कोई ऐसी फैसिलिटी उसको दें जिससे वह उस कंपटीशन में कहीं ठहर सके, जो किसी इंटरनेशनल मार्केट में वह अपने आप को स्थापित कर सके। इसमें वो पिछड़ता था। लेकिन हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया के बीच में उन्होंने प्रारंभ किया है, और आज उसकी यहां वाराणसी में हम लोगों ने 15 जेटी जो यहां से यात्रियों को ले जाने और उस परिवहन की सुविधा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, कुछ का लोकार्पण किया है, कुछ का हम लोगों ने शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया है। कोरोना कालखंड में हम लोग उत्तर प्रदेश से, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गतिविधियां एक प्रकार से बाधित हो गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर का एकमात्र सेक्टर ऐसा था जिसमें ग्रोथ आया था, और उस समय हम लोगों ने यहां से बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट्स यहां से एक्सपोर्ट किए थे, और उसमें भी इनलैंड वाटरवे का हम लोगों ने सहयोग लिया था। यहां से आम भी बाहर गए थे, अमरूद गए थे, ड्रैगन फ्रूट का भी उत्पादन हमारे यहां के उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने प्रारंभ किया था। ये सभी सुविधाएं प्राप्त होने का आज परिणाम हम सबके सामने है, और मेरा मानना है कि अगर पहले ऐसा नहीं कि जल परिवहन की सुविधा पहले लोग न लेते रहे हों, उत्तर प्रदेश के अंदर जल मार्ग से आज से 35 साल, 40 साल, 50 साल पहले बड़ी बड़ी नौकाओं के माध्यम से यहां पर कोयला आता था, यहां से गुड़ और खाद्यान्न यहां से फिर दूसरे बाजारों में जाता था। लेकिन समय के बाद हिमालय से आने वाली नदियों में अधिक सिल्ट होने के नाते नदियां छिछली होती गईं, उसका उपयोग बंद होता गया, और लोगों ने सड़क मार्ग का और माल गाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया। जब यह ज्यादा महंगा साबित होने लग गया तो यहां से लोगों ने पलायन करना शुरू किया। जो लोग पहले यहां से उत्पादन करके अपने माल को मार्केट में बेचने का काम करते थे या भेजने का काम करते थे, जब उनके पास कार्य नहीं रह गया तो उन्होंने पलायन करना शुरू किया, तो यहां से पलायन किए। याद करिए पिछले 60-70 वर्षों के इस पलायन के इतिहास को। पूर्वी उत्तर प्रदेश से कभी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए और दुनिया के तमाम अन्य देशों के लिए बड़े पैमाने पर मजदूर बनकर के गए लोग। फिर उसके बाद यहां से कोलकाता के लिए लोग गए। जब कोलकाता का उद्योग ट्रेड यूनियन का शिकार हुआ तो फिर वहां के बाद लोगों ने मुंबई के लिए और देश के अन्य भागों के लिए प्रस्थान किया। कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा तो पीयूष जी हमेशा फोन से इस बात के लिए नाराज होते थे, क्या हम करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां जाएंगे। और ये मुझसे कहते थे कि आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रवासी कामगार श्रमिक आएंगे इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो मैंने कहा एक संख्या कितनी होगी, उन्होंने कहा संख्या 1 करोड़ तक पहुंचेगी। मैंने कहा 1 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, 1 करोड़ लोग यहाँ आसानी से आ जाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा इससे उत्तर प्रदेश से बिल्कुल निश्चित रहिए। और उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उस दौरान आए थे। हमने काम जरूर किया था, जितने लोग आ रहे थे उत्तर प्रदेश से, उन सभी नाकों में हम लोगों ने अपनी टीम रखी थी। उन लोगों को रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनका मेडिकल चेकअप की व्यवस्था,
और साथ साथ उनकी स्किल मैपिंग भी हम करते थे। स्किल मैपिंग के माध्यम से कौन व्यक्ति क्या काम, कौन कंप्यूटर ऑपरेटर है, कौन व्यक्ति ड्राइवर है, कौन टेलर मास्टर है, कौन व्यक्ति श्रमिक है, कौन व्यक्ति किस फील्ड में काम करता है, इन सब की स्किल मैपिंग भी हम लोगों ने की। और फिर वहां से हम उनको उनके जनपद की बसेज में पूरी सूची के साथ भेजते थे कि इतने लोग हैं, इनमें से ये लोग इस कार्य में लगेंगे, इनको इसी प्रकार के कार्य के साथ जनपद में जोड़ने का कार्य भी करेंगे। अब आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने लॉकडाउन को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे कोरोना कालखंड में एक भी उद्योग बंद नहीं होने दिया था। हमने वहां पर कुछ सावधानी रखी थी। सावधानी के रूप में हम लोगों ने वहां पे कुछ कार्यक्रम किए थे, क्योंकि तब तक तकनीक का बेहतरीन उपयोग होना प्रारंभ हुआ था। कोविड हेल्प डेस्क बनाए, कोविड केयर सेंटर भी जहां आवश्यकता पड़ी कि 10 से अधिक लोग कहीं कार्य कर रहे हैं, वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर दिए। जब सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हम लोगों ने वहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और ऑक्सीजन जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां ऑक्सीजन के प्लांट भी हम लोगों ने लगवाए। लेकिन कार्य रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्य रुकेगा तो बड़ी पैमाने पर लोग बेरोजगारी छाएगी, लोग सड़कों पे आएंगे, अव्यवस्था फैलेगी। यह नहीं होने देना है और उसका परिणाम हम सबके सामने रहा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड प्रबंधन का कार्य करना है। पीएम साहब ने एक नारा दिया, सबसे पहले आपको याद होगा, जीवन और जीविका को बचाने की। पहले जान है जहान है, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने की। फिर उन्होंने नारा दिया था कि जो जहां है वहीं उपचार कराओ। तो लोग उसकी बात, इससे पहले की कुछ बात समझ पाते, हम लोगों ने अपने यहाँ की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इसकी ट्रेनिंग दी और हम लोगों ने कहा आप डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करिए। जिस घर में कोई व्यक्ति फीवर से पीड़ित है, उसमें कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, उसको वहीं घर में उसको क्वारंटीन करके वहीं उपचार की सुविधा दो और डॉक्टर वहीं जाके देखें, वहीं से उनका सैंपल लें और आवश्यकता पड़ने पर यह भी सुविधा दी जाए कि जिनमें सामान्य लक्षण है, जो घर में ठीक हो सकते हैं उनको घर में, और जिनमें थोड़ी भी गंभीरता होती है उनको तत्काल हम लोग बेहतरीन सर्विलांस के माध्यम से उन्हें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचा के उनको उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा दें। लेकिन तकनीक का उपयोग हर एक स्तर पर होता रहा और मुझे लगता है कोविड प्रबंधन में जैसे तकनीक की बड़ी भूमिका थी, एक साथ 10 करोड़ किसानों तक पीएम साहब एक क्लिक करके पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उनके घर तक पहुंचाते थे। एक साथ 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कोई लाभ देना है, उनके घर तक वो लाभ का लाभ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य एक सस्टेनेबल ढंग से आगे बढ़ सके, टाइम बाउंड हो, इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटर वे की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देश के अंदर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे धनी राज्य माना जाएगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन मौजूद है और हिमालय से आने वाली सदाबहार नदियों के माध्यम से जहां पर इन संभावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं पीयूष जी का भी और सोनोवाल जी के भी संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि हिमालय से आने वाली नदियों में सिल्ट बहुत बड़े पैमाने पे आता है और उसके कारण नदियां छिछली हुई हैं, उसका वो फैली है बहुत। जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश में 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। हर वर्ष बाढ़ का प्रभाव उसमें प्रभाव पड़ता था, थोड़ी भी बारिश पड़ती थी बाढ़ आ जाती थी और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते थे और उस पैसे के नाम पर बहुत जगह तो लूट खसोट होती थी। हम लोग आए आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं एक जगह गया था जहां हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे केवल बाढ़ प्रबंधन के नाम पे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा 2017 में ही। मैंने कहा ये काम करो, इस कार्य नहीं होगा इस बार बाढ़ आने था। लेकिन मुझे उसी जगह से अगले दिन जाना पड़ा था
तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के जो चॉपर का जो पायलट था उससे मैंने कहा भी ये काम करो, थोड़ा इसको नीचे करके मुझे दिखाओ क्या है ये। मैं वहां पे गया था तो मैंने वापस आने के बाद फिर बैठक की और मैंने संबंधित विभाग से कहा, मैंने कहा अगर हम लोग बाढ़ प्रबंधन की बजाय वहां पे नदी को चैनलाइज कर लें। उन्होंने कहा ये कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजिंग करके। कहा कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजर मंगाओ। उन्होंने कहा ड्रेजर तो हमारे पास है। तो मैंने कहा जो है उसका उपयोग तो करो। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस पे 100 करोड़ रुपए खर्च होते थे, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम लोगों ने ड्रेजिंग करके पूरी नदी को 12 किलोमीटर चैनलाइज कर दिया था। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल 4 से 5 जनपदों में बाढ़ आती है और इसको भी हम बहुत शीघ्र नियंत्रित करेंगे। और मेरा मानना है इनलैंड वाटरवे की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आमदनी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए कि आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है, तो आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पाद के लिए खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो क्लस्टर है देश के अंदर वो यूपी के अंदर मौजूद है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपने एमएसएमई को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर पूरे देश के अंदर उसको प्रमोट करने का, उसके प्रमोशन करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, ये सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने पहले ही बताया कि 1 वर्ष के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा का लाभ लेकर के उत्तर प्रदेश ने अकेले वाराणसी के आसपास के जनपदों से हम लोगों ने 3,700 करोड़ रुपए के एमएसएमई के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। स्वाभाविक रूप से ढेर सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज पीएम गतिशक्ति के नेशनल मास्टर प्लान के इनलैंड वाटरवे कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन के लिए वाराणसी, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उस वाराणसी में यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हम उन सभी संभावनाओं को देखेंगे जिन संभावनाओं से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है या कोई ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके और आगामी योजनाओं को राज्य सरकार के साथ, लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के हम इसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित करने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के अवसर पर इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से और मां गंगा की कृपा से ये पूरा कॉन्क्लेव अपने निष्कर्षों को प्राप्त करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, for your noteworthy address. Under your leadership and vision, Uttar Pradesh has led the way in sustainable growth in all sectors. I'd like to now request Shri Jayant Singh, Vice Chairman, Inland Waterways Authority of India, requesting him to kindly propose a vote of thanks. Thank you. The PM Gati Shakti National Master Plan, NLP, NIP, they all aim to provide a concerted, cohesive and a comprehensive vision, a sense of mission to ensure efficiency, effectiveness in the logistics sector, setting in motion a virtuous cycle of productivity and cost effectiveness in our economy, the country and the region at large. And today, on behalf of IWI and the Ministry of Port Shipping and Waterways, it's my privilege to propose a vote of thanks for all our distinguished delegates, guests and participants who have made this occasion. I extend my heartfelt gratitude to the CM Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, Union Minister of Commerce, Textiles, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Piyush Goyal ji, Union Minister of Port Shipping and Waterways and Ayush, Shri Sarvanand Sonowal ji, Minister of State for Shipping, Government of Bangladesh, Shri Khalid Mahmood,
Union Minister of State for Port Shipping and Waterways, Shri